یہ کہانی ہے اس پاکستان کی جو بھی جوان ہو رہا تھا، مگر دشمن کی نظریں پہلے ہی اس پر جم چکی تھیں۔ 1960 کی دہائی ایک ایسا وقت جب ملک ترقی کی راہ پر تھا، مگر اندرونی اور بیرونی خطرات سر اٹھا رہے تھے۔ ایک طرف صنعتی ترقی، دوسری طرف سیاسی بے چینی۔ پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان ایک مضبوط حکمران، لیکن کیا سب ان کے فیصلوں سے خوش تھے؟ ترقی کے دعوے، مگر عوام کے دلوں میں سوالات، کیا سب کچھ واقعی ٹھیک تھا؟ ادھر بھارت خاموشی سے اپنی فوج کو مضبوط کر رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ 1962 کی چین بھارت جنگ نے خطے کا نقشہ بدل دیا۔ وار ٹینشن رائز۔ بھارت کو شکست ملی، مگر اس کا غصہ باقی تھا۔ یہ شکست بھارت کے لیے صرف ایک جنگ نہیں، ایک بدلہ لینے کا وعدہ تھی۔ پاکستان نے موقعوں کی مناسبت سے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ یہ تعلق بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ کشمیر ہمیشہ کی طرح تنازع کا مرکز، جہاں چنگاری سلگ رہی تھی۔ ہر طرف ایک سوال، جنگ ہوگی یا نہیں؟ پاکستانی فوج خاموشی سے تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ وہ فوج تھی جس کے پاس وسائل کم مگر جذبہ بے مثال تھا۔ فضاؤں میں ایک اور طاقت تیار ہو رہی تھی، پاکستان ایئر فورس۔ یہ وہ شاہین تھے جو دشمن کو آسمان میں جواب دینے والے تھے۔ بڑی فوج اپنی سرحدوں پر چٹان بن کر کھڑی تھی، اور پاکستانی عوام ہر حال میں اپنے ملک کے ساتھ تھے۔ یہ صرف فوج کی جنگ نہیں ہونے والی تھی، یہ ایک قوم کے ساتھ جنگ تھی۔ ادھر بھارت نے منصوبے بنانے شروع کیے، خاموشی سے، خطرناک طریقے سے۔ 1965 سے پہلے سرحدوں پر جھڑپیں شروع ہو چکی تھی۔ رن آف کچھ، پہلا بڑا امتحان۔ یہاں پاکستان نے اپنی طاقت دکھا دیا اور دشمن کو پیغام دے دیا۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ بھارت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کشمیر میں کچھ بڑا کرنا ہے، اور پاکستان ہر لمحے تیار ہو رہا تھا۔ قوم کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن تاریخ بدل دیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر دل میں وطن کی محبت موجزن تھی۔ فوجی جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے تھے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ ہر بچہ آنے والے وقت کے اپنے فوجی ہیروز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کا امتحان بھی تھا۔ ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، پاکستان زندہ باد۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جب گولیاں چلنے والی تھی۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ قوم کیا کر سکتی ہے۔ دشمن کو لگا شاید پاکستان کمزور ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قوم کی طاقت ہوتی کیا ہے۔ یہ قوم جھکتی ہے تو صرف اپنے اللہ کے آگے، کسی اور کے آگے جھکنا کفر سمجھتی ہے۔ اور اب جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ اگلے لمحے گولیاں چلیں گی، جہاز اڑیں گے اور تاریخ لکھی جائے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب خاموش سرحدیں گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ بھارت نے کشمیر میں دراندازی کی اور جنگ کی پہلی چنگاری بھڑک اٹھی۔ پاکستان نے فوراً جواب دیا اور دشمن کو بتا دیا کہ ہم تیار ہیں۔ یہ اب سرحدی جھڑپ نہیں رہی تھی، یہ ایک مکمل جنگ بن چکی تھی۔ 6 ستمبر 1965، ایک تاریخ جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دشمن نے لاہور کی طرف پیش قدمی کی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کون ہے۔
लाहौर के दरवाजे पर पाकिस्तानी फौज चट्टान बनकर खड़ी थी। हर सिपाही आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। और फिर फजाओं में गूंजी एक खतरनाक आवाज। ये थे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन, जो दुश्मन पर बिजली बनकर टूटने वाले थे। पहला बड़ा फजाई मुकाबला जो दुनिया ने हैरत से देखा। कम वसाइल मगर नाकाबिले यकीन महारत। पाकिस्तानी पायलट्स ने दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक दुश्मन के जहाज गिरते गए। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह महारत और हौसले का मुजाहिरा था। दुनिया ने मान लिया पाकिस्तान एयरफोर्स किसी से कम नहीं। एम आलम, एक नाम जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। चंद लम्हों में दुश्मन के कई जहाज तबाह। यह एक रिकॉर्ड था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। शाहीनों ने साबित कर दिया कि आसमान भी इनका है। इधर जमीन पर बाकी फौज ने दुश्मन को रोक रखा था। लाहौर की हिफाजत हर कीमत पर। दुश्मन को लगा था वो आसानी से दाखिल हो जाएगा, मगर हर कदम पर इसे मुजाहिमत मिली। और पाकिस्तानी तोपखाने ने दुश्मन को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इधर से चलाई गई हर गोली उनके लिए एक पैगाम थी। यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह ईमान और जज्बे की जंग थी। हर सिपाही एक दीवार बन चुका था और दुश्मन हैरान था। इधर फजाओं में शाहीन अब भी राज कर रहे थे। हर हमला दुरुस्त और तबाहकुन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के कई अड्डे निशाना बनाए। यह हमले दुश्मन के लिए नाकाबिले यकीन थे। हर कामयाबी कौम के हौसले बुलंद कर रही थी। हाँ, हम सब मिलकर कामयाब होंगे। शहर शहर लोग दुआएं कर रहे थे। ये ईमान की ताकत है जो हर दिल को जोड़ती है। अल्लाह हम सबकी दुआएं सुनेगा। हर घर एक महाज बन चुका था। ये जंग पूरी कौम लड़ रही थी और दुश्मन को एहसास हो रहा था कि ये आसान नहीं। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, जब जमीन पर टैंकों की सबसे बड़ी जंग होने वाली थी। और फिर जमीन कांप उठी जब टैंकों की आवाज ने मैदान जंग को हिला दिया। यह था चावंडा का महाज, जहां तारीख लिखी जाने वाली थी। दुश्मन अपने जदीद टैंकों के साथ आगे बढ़ रहा था, खुद एतमादी के नशे में। मगर सामने थे पाकिस्तान के बहादुर जवान। वसाइल कम मगर हौसला आसमान से भी बुलंद। हर जवान ने कसम खा ली थी कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। टैंकों की कतारें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और फिर पहला धमाका। जंग का आगाज हो चुका था और मैदान आग बन चुका था। पाकिस्तानी तोपखाने ने दुश्मन को जकड़ लिया। हर गोला दुश्मन के लिए कयामत था। टैंकों के दरमियान मौत का खेल जारी था तो बस आग का रक्स या दुश्मन की चीखें। और पाकिस्तानी सोल्जर्स डटे रहे हर महाज पर, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर। हर कदम दलीराना और वक्त इन बहादुरों की हर पल एक नई दास्तान लिख रहा था।
दुश्मन के जदीद टैंक एक एक करके तबाह होने लगे। ये वो लम्हात थे जब दुनिया इन बहादुरों की बहादुरी पर गीत गा रही थी। और दूसरी तरफ चावंडा का मकाम टैंकों का कब्रिस्तान बन रहा था। हर तरफ जले हुए टैंक दुश्मन की नाकामी की गवाही दे रहे थे। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह मोजिजा था। पाकिस्तानी जवान थके नहीं, रुके नहीं। हर सिपाही बहादुरी में बेमिसाल था और दुश्मन इनकी इस बहादुरी से खौफजदा। ये वो जंग थी जहां जज्बा जीत रहा था। दुश्मन के हर टैंक की तबाही एक नई उम्मीद थी। चावंडा का मैदान बहादुरी की अलामत बन गया। दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत क्या होती है। हर पाकिस्तानी सोल्जर इस पाक वतन पर अपनी जान निछावर करने को बेताब था। ये जंग तारीख में सुनहरी बाब बन चुकी थी। इस जज्बा सरशारी को देखते हुए दुश्मन को वापस भागना पड़ा। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह की रहमत से नाकाबिले तस्खीर और नाकाबिले शिकस्त है। हर तरफ एक ही आवाज और एक ही सदा गूंज रही थी। ये फतह सिर्फ फौज की नहीं थी, ये पूरी कौम की जीत थी। चावंडा हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो जगह है जहां तारीख ने करवट ली। दुश्मन गुरूर और घमंड के सबक सीख गया और पाकिस्तानी फौज दुनिया के सामने एक मिसाल बन गई। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब फैसला होना था कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। मैदान जंग अभी गर्म था, मगर दुनिया की नजरें अब इस जंग के आखिरी मराहिल पर जमी थी। दुनिया की तरफ से दबाव बढ़ रहा था कि यह जंग अब रोकी जाए। अक़वाम आलम पाकिस्तान को सीज फायर की तरफ धकेल रही थी, क्योंकि अक़वाम आलम पाकिस्तान के दुश्मन की नाजुक होती हालत को महसूस कर चुके थे। मगर मैदान में लड़ने वाले सिपाही अभी भी डटे हुए। हर महाज पर आखिरी जोर लगाया जा रहा था। फजाओं में शाहीन, जमीन पर जवान, सब अपने उरूज पर थे। लेकिन आलमी सियासत अपना रंग दिखा रही थी। और फिर सीज फायर का ऐलान हो गया। गोलियां रुक गईं, मगर दिलों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि दुश्मन इंतहाई खौफजदा हो चुका था। यह जंग खत्म हुई, मगर कहानियां शुरू हो गईं। पाकिस्तान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। छोटा मुल्क, मगर बहादुरी और जुर्रत में बेमिसाल। हर घर में जश्न भी था और शहीदों का गम भी। यह फतह थी, मगर कीमत के साथ। अब अगला मरहला था मुज़ाकरात। ताशकंद में अहम मुलाकात तय पाई। दुनिया की नजरें इस मुआहदे पर थीं। और फिर ताशकंद मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक ने जंगबंदी को कबूल किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवाम में मनफी सोच पैदा करने वाले भी अपनी तादाद बढ़ाने लगे। पाकिस्तानी अवाम ने इस जीत को सेलिब्रेट किया, मगर कुछ ने सवाल उठाए और फिर सियासी फजा बदलने लगी। अयूब खान की हुकूमत दबाव में आने लगी। मनफी सोच के हामिल लोग जवाब मांग रहे थे। ये जंग खत्म हुई, मगर सियासी जंग शुरू हो गई। मुल्क में बेचैनी बढ़ने लगी। 1916 एक और बड़ा मोड़।
और फिर अयूब खान ने इक्तदार छोड़ दिया और एक नया दौर शुरू हुआ। यह सफर हम सबका है, आगे बढ़ो। और जनरल यहिया खान ने इक्तदार संभाला। मुल्क को संभालने की कोशिशें शुरू हुई और फिर इंतखाबात का ऐलान हुआ। और फिर 1970 पाकिस्तान की तारीख का अहम साल। अवाम ने अपने नुमाइंदे चुन लिए, मगर इख्तिलाफात फिर सामने आने लगे। ये वो हालात थे जो एक नए बहरान की तरफ ले जा रहे। साल 1965 की जंग ने कौम को जोड़ा, मगर सियासत ने फिर तकसीम करना शुरू किया। तारीख हमें सिखाती है कि जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती। असल जंग इत्तेहाद, क़यादत और फैसलों की होती है। ये थी साल 1960 से साल 1970 तक की वो दास्तान जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी वो दास्तान जिसमें जज्बा था, कुर्बानी थी और एक कौम का नाकाबिले शिकस्त ईमान था। साल 1965 की जंग ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक नजरिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।